وہ بڑی دلچسپی سے اس کی دھمکی سن رہا تھا۔ میں کہوں گی کہ تم نے میرا فون چوری کیا ہے۔ یہ سنتے ہی آلیان کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ آ گئی نا اپنی اوقات پر؟ یہ کہتے ہی آلیان نے پوری شدت سے اپنے ہاتھ میں موجود فجر کا فون دیوار پر مارا کہ فون ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ فجر منہ کھولے اپنے ٹوٹے ہوئے فون کو دیکھنے لگی اور ہوش میں آتے ہی بولی، یہ کیا تم نے؟ میرا اتنا قیمتی فون توڑ دیا؟ یہ کہتے ہی فجر کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے۔ ایک منٹ کے لیے تو آلیان اس کی آنکھوں میں کھو سا گیا، لیکن پھر سنبھلتے ہوئے بولا، میں نے وہی کیا ہے جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ یہ سنتے ہی فجر کو غصہ آ گیا۔ تم نے میرا اتنا مہنگا فون توڑ دیا، کبھی دیکھا بھی ہے تم نے اتنا ایکسپینسو فون؟ آلیان کہیں سے بھی غریب تو نہیں لگتا تھا، لیکن اس کے کپڑوں سے لے کر جوتوں تک ہر چیز بہت مہنگی لگتی تھی۔ لیکن غصے میں فجر کے منہ میں جو آیا اس نے وہ بول دیا، اتنا مہنگا فون دیکھنے کا تو پتہ نہیں، لیکن توڑ کے شرف مجھے یقیناً حاصل ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک دل جلا دینے والی مسکراہٹ نے آلیان کے چہرے کا احاطہ کیا، جس پر فجر کا خون کھول اٹھا۔ آلیان، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے پنگا کس سے لیا ہے؟ اب تم دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ جس پر آلیان نے ایک جاندار قہقہ لگایا اور نفی میں سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ فجر دل ہی دل میں آلیان سے مخاطب ہوئی، فجر نے پنگا لے کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے فجر آلیان سے بدلہ لینے کے عزم میں ساتھ چلی گئی۔ سعد کی باتوں کو سن کر غصے میں پڑی سعد کی الٹی طرف بڑھ گئی۔ تیز تیز چلنے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں لگا وہ کہاں گئی۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ کر جگہ کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کچھ لڑکے اپنی بائک پر آ کر پری کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ پری یہ دیکھ کر بوکھلا کر آگے جانے لگی تو ایک لڑکا وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ پھر جب وہ پیچھے کی طرف بڑھی تو وہاں پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ آخر پر ہمت کر کے بھاگنے لگی تو ایک لڑکے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پری روتے ہوئے چلانے لگی۔ تبھی کسی نے اس لڑکے کے منہ پر مکہ مارا، وہ لڑکھڑا کر پیچھے گر پڑا۔ پری فوراً سنبھل کر پیچھے ہٹی۔ اب وہ لڑکا سب ان لڑکوں کی پٹائی کر رہا تھا۔ پری کی طرف اس کی پیٹھ تھی، لیکن پری پہچان نہ سکی کہ وہ سعد تھا، کیونکہ اس نے ایسی ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ ان لڑکوں کی اچھی طرح پٹائی کرنے کے بعد جب وہ بھاگ گئے تو سعد کی طرف بڑھا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ پری کو اس کی انگلیاں اپنے بازوؤں میں پیوست ہوئی محسوس ہوئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ ہاں، تم تو کہہ رہے تھے کہ میں چلی جاؤں گی، تم چاہتے یہی تھے، اب کیوں آئے ہو؟ پری نے غصے سے چلائی تو سعد نے کھینچ کر ایک تھپڑ منہ پر رسید کیا۔ پری بے یقینی سے سعد کی طرف دیکھنے لگی۔ میں آ گیا ہوں نا، تبھی تم یہاں سے سلامت کھڑی ہو۔ اس سے پہلے کہ سعد کچھ اور بولتا، فجر کا فون آنے لگ گیا۔ شاید یہاں پر سگنلز موجود تھے۔ پری نے فجر کو تفصیل بعد میں بتانے کا کہا، اسے لینے آنے کا کہا۔ سعد بھی گھر فون کیا اور دونوں انتظار کرنے لگے۔ اس دوران پری نے ایک بار سعد کی طرف نہیں دیکھا۔ پری فجر کے ساتھ اس کے گھر اور سعد اپنے گھر چلا گیا۔ فجر پری کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور آتے ہی اس نے پوچھا، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تو پری نے اسے ساری تفصیل بتا دی، جس پر فجر نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ پری، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی کانٹ بلیو دس فجر، تمہیں بھی لگتا ہے کہ وہ صحیح اور میں غلط ہوں؟ پری، میں تمہیں غلط نہیں کہہ رہی، لیکن تمہیں اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس نے خود مجھے جانے کا کہا تھا تو اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا، تم اسی کی سائڈ لے رہی ہو۔ فجر پلیز تم مجھے گھر بھجوا دو، پری کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ لیکن پری، فجر نے اسے روکنا چاہا۔ پلیز فجر، میں اس وقت کچھ بھی نہیں سننا چاہتی۔ تم نے اگر مجھ سے سعد کی وکالت کے لیے کوئی بھی بات کرنی ہے تو کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، سوری بابا، تم اپنے کزن کی وجہ سے مجھ سے کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے فجر پری کے گلے لگ گئی، جس پر پری مسکرا دی۔ ہاں، لیکن اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ فجر نے بھی اسے کریدا نہیں اور اسے چھوڑنے کے لیے باہر کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی وجہ سے بھی ان دونوں کی دوستی ذرا بھی خراب ہو۔ فجر پری کو باہر چھوڑنے کے لیے آئی تو اسے ایک بار پھر آلیان کی ہوئی حرکت یاد آئی۔ وہ پری کی پریشانی میں کچھ دیر کے لیے بھول گئی تھی۔ ایک بار غصے کی لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ تبھی اس نے ایک بار خود سے عہد کیا کہ وہ آلیان کو نہیں چھوڑے گی۔ تبھی اس کے دماغ میں ایک شرارتی آئیڈیا آیا۔ اب اسے پارٹی کا بے صبری سے انتظار تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے فون پر پرائیویٹ نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ وہی جس کے خیالوں میں تم گم ہو۔ فجر ارد گرد دیکھنے لگی کہ کہیں اس نے کسی کی سوچ پڑھ تو نہیں لی۔ کون؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ دوسری طرف موجود شخص نے زوردار قہقہ لگایا۔ یہ کہتے ہوئے دوسری طرف موجود شخص نے فون کاٹ دیا۔ ہیلو، فجر نے پریشانی سے کہا، لیکن دوسری طرف موجود شخص فون کاٹ چکا تھا۔ پتہ نہیں کون پاگل تھا، فجر بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔
परी घर आते ही अपने कमरे में चली गई, आते ही सो गई। शाम को जब इसकी आंख खुली तो इसे सख्त भूख का एहसास हुआ, क्योंकि इसने तो नाश्ता भी नहीं किया था। फ्रेश होने के बाद परी ने खाना खाया। वो किचन से निकल ही रही थी कि ज़ाहद साहब की आवाज़ इसकी समातों से टकराई। परी, बात सुनो। साथ को देखते ही इसके अंदर नागवारी की लहर सरैयत कर गई। जी बाबा। वो भी ज़ाहद साहब के सामने वाले सोफे पर टिक गई, जबकि साथ ज़ाहद साहब के साथ बैठा हुआ था। वो आराम से इसे देख सकती थी। परी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने आज क्या हरकत की है? जिस पर परी हैरान परेशान ज़ाहद साहब को देखने लगी। मैंने? परी ने अपनी तरफ इशारा किया। परी, ऐसे जाहिर मत करो जैसे आपको कुछ पता नहीं। अगर गाड़ी खराब हो गई थी तो आप गाड़ी से क्यों उतरी? आपको अंदाज़ा भी है कि आपकी इस हरकत की वजह से साथ कितना परेशान हुआ है? बाबा, मैंने? परी अभी कुछ कहने ही लगी थी कि आबदा बेगम ने इसे बीच में ही टोक दिया। वो बच्चा तुम्हें छोड़ने के लिए गया था, तुम इसके साथ बदतमीजी करके आ गई हो। ये भी कोई तरीका है? बच्चा, इस बच्चे की हरकतें मालूम हो ना आपको तो फिर पता चले। परी ये सोचते हुए साथ को घूरने लगी, जिसने बेनियाजी से कंधे उचका दिए। इसे मत घूरो। वो मुझे बता भी रहा था कि इस हरकत के बारे में, तो वो मेरे इसरार करने पर इसने बताया, क्योंकि ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी कहीं और खड़ी थी और इसीलिए तुम फजर के साथ गई। ज़ाहद साहब ने इसे टोका। बाबा, मेरी बात सुने। क्या बात सुनो तुम्हारी? ये जानने के बाद भी कि गाड़ी खराब होने पर तुम साथ से बदतमीजी करके वहां से चली गई थी। बाबा, ये झूठ बोल रहा है। परी, हद होती है। एक तो आपने गलती की है, अब आप अपनी गलती मान भी नहीं रही। हद होती है, सॉरी बोलो साथ से। अब के आबदा बेगम ने इसे लताड़ा तो परी ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। आबदा बेगम जाने तो बच्ची है। फायजा बेगम ने परी का तकरीबन रोने ले करीब होता चेहरा देकर इसकी हमायत की। क्या जाने दें, हद होती है बदतमीजी की। अब जाओ अपने कमरे में, आज के बाद ऐसी हरकत ना हो, आबदा बेगम ने इसे घूरते हुए कहा। तो वो इन पर एक शिकवा नज़र डालकर अपने कमरे की तरफ भर गई। अब इसे साथ से और भी ज़्यादा नफरत हो रही थी, क्योंकि आज इसकी वजह से ज़ाहद साहब ने अपनी नाजों में पली लाडली बेटी को डांटा था। आई हेट यू साथ, आई जस्ट हेट यू। परी गुस्से में रोते हुए चीखी थी। साथ ने पाकिस्तान में अपना क्लिनिक खोलने का फैसला किया, क्योंकि अब वो अपनी माँ से दूर नहीं रहना चाहता था। फायजा बेगम साथ के इसरार के बावजूद लंदन जाने के लिए नहीं तैयार हुई। साथ भी ऊपर ही कमरे में रहाइश पजीर था। परी जब सोने की कोशिश करती तो उसे अपनी बेइज्जती याद आने लगती। आखिर गुस्से में वो उठकर बैठ गई। साथ को सुलाने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ी। साथ के कमरे के बाहर पहुंची तो कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। परी हल्का सा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। साथ कमरे में मौजूद नहीं था, लेकिन वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। गालबन वो नहा रहा था। बेड पर इसकी शर्ट और ट्राउज़र पड़ा हुआ था, जो गालबन वो नहाने के बाद पहनने वाला था। तभी परी के दिमाग में एक शरारती सा आइडिया आया। अब परी सोच रही थी कि इसके साथ करना क्या है। इसने टेबल पर पड़े बॉक्स से कैंची निकाली और साथ की वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। अपना काम करने के बाद फातिहा मुस्कुराहट इसके चेहरे का हाथा किया। वो कमरे में एक तायराना नज़र डालकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इसे यकीन था कि अब इसे पुरसकून नींद आएगी। अगले दिन सैटरडे था। परी को यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी, तो सुबह वो अच्छी तरह नींद पूरी करके उठी तो साथ टीवी लॉन्च में सोफे पर बैठा हुआ था। इसने शरारत रात वाला ट्राउज़र शर्ट पहना हुआ था। इसका मतलब यह था कि इसने अभी तक अपने कपड़ों का हशर नहीं देखा था। अभी इसे बैठे हुए 15 मिनट हो गए थे तो साथ दनदनाता हुआ इसके सर पर आ पहुंचा। ये तुम्हारी हरकत है ना? साथ ने अपनी टी शर्ट परी के सामने लहराई, जो जगह जगह पर ऐसे कटी हुई थी जैसे किसी चूहे ने काटा हो। मैं क्यों करूंगी भला ऐसे? परी बौखलाकर खड़ी हो, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि साथ को इतनी जल्दी पता चल जाएगा। मैं क्यों तुम्हारी शर्ट कैंची से काटूंगी? घड़बड़ा कर जो उसके मुंह में आया बोल दिया। तो कैंची से काटी थी ना तुमने मेरी शर्ट? मैंने नहीं काटी। अच्छा, तो तुम्हारी रिंग मेरे कमरे में क्या कर रही थी? परी ने इर्द गिर्द देखा। तभी परी ने अपनी उंगली की तरफ देखा, जहां इसकी रिंग मौजूद नहीं थी, जो हर वक्त इसने पहन रखी होती थी। इससे पहले वो कुछ कहती, साथ से बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। तुम्हें पता भी है तुमने क्या हरकत की है? मुझे हॉस्पिटल जाना था और मेरे पास एक भी सही सलामत नहीं बची। वो तकरीबन धाड़ता रहा। परी पहले तो इसकी धाड़ सुनकर सहम गई, लेकिन अपने अंदर हिम्मत पैदा करके बोली, हाँ तो अभी मैंने ये काम किया है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा और क्या कह रहे थे कि मैं बगैर वजह गाड़ी से उतर गई थी? बाबा के सामने तो तुम ऐसे बन रहे थे जैसे तुमने बड़ा शरीफ इस दुनिया में कोई है ही नहीं और तुम झूठ बोल सकते ही नहीं। मैं ये भी नहीं कर सकती। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं खुद को वही समझती हूँ जो मैं हूँ, प्रीशियस ज़ाहिद। ये सुनते ही साथ ने एक झटके से परी का बाजू छोड़ा।
मुझे बहुत अफसोस हुआ ये जानकर कि तुम अपनी पहचान भी नहीं बता सकी, बट यू नो डैड, ये गलती तुम्हारी बहुत महंगी पड़ेगी। ये कहते ही साथ लंबे लंबे डग भरता हुआ वहाँ से निकल गया। परी इसकी बातों के बारे में सोचने लगी। फजर शाम को पौधों को पानी देते हुए गुनगुना रही थी, तभी इसका फ़ोन बजा, जहाँ प्राइवेट नंबर से कॉल आ रही थी। कुछ देर के बाद वो इसे इग्नोर करती रही, लेकिन फिर मुसलसल फ़ोन बजने पर इसने फ़ोन को उठा लिया। दूसरी तरफ से इसे कहा गया था कि जैसे इसकी सदियों से दोस्ती हो। हेलो मिस्टर, तुम होते कौन हो? मुझ पर हुक्म चलाने वाले? भाई हो, शोहर हो, कौन हो जो तुम्हारी बात मानो? अभी का तो पता नहीं, लेकिन मुस्तकबिल करीब आने में तुम्हारा शोहर ज़रूर हो जाऊंगा, इसलिए अभी से आदत डाल लो और आज के बाद मेरा फ़ोन इग्नोर करने की गलती मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही फजर का गुस्से से चेहरा लाल हो गया। अपनी बकवास बंद करो, आइंदा मुझे फ़ोन मत करना। मैं कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं हूँ, तुम जैसों को सबक सिखाना मुझे अच्छी, इसीलिए आज के बाद मेरे फ्लर्ट करने की कोशिश मत करना, और ना ही तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये कहते ही फजर ने खट्टाक से फ़ोन बंद कर दिया। पता नहीं समझता क्या है अपने आप को, इसके पास मेरा नंबर कैसे आया? ये तो मेरा नया नंबर है, ज़्यादातर लोगों के पास ये नंबर है भी नहीं है। अगले दिन परी अपनी माँ और फूफो के साथ शॉपिंग पर चलेगी, क्योंकि अगले हफ्ते माहम की शादी थी। वो लोग इसी सिलसिले में शॉपिंग पर आए हुए थे। ड्राइवर इन्हें छोड़कर चला गया। इन्हें शॉपिंग करते हुए 1 घंटा गुजर गया। अब वो लोग अपने कपड़ों की शॉप पर माहम की शादी के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रहे थे। परी वहां पर 2 मैक्सीज उठाकर लाई और अपने साथ लगाकर शीशे में देखने लगी। एक मैक्सी ब्लैक थी और दूसरी पिंक कलर की थी। अभी वो देख ही रही थी, किसी पीछे से आवाज आई, पिंक वाली। परी ने मुड़कर देखा, साथ खड़ा था। परी पहले तो देखकर बहुत हैरान हो गई। मशवरा नहीं दे रहा, बता रहा हूँ, तुम पिंक वाली ले लो। अब मैं तुम्हें ब्लैक वाली ही लूंगी। साथ की आंखों में आंखें डालकर बोली। पिंक वाली मैक्सी वापस लटकाई और ब्लैक कलर की लेकर काउंटर की तरफ बढ़ने लगी। साथ ने इससे बर्क रफ्तारी से पिंक वाले हैंगर से मैक्सी उठाई और परी को कलाई से पकड़कर पीछे किया। खुद काउंटर की तरफ बढ़ गया। मुंह खोले साथ कार्रवाई से देखने लगा। जवाब में मैक्सी का पिल बेक कर वो इसकी तरफ बढ़ रहा था। ये क्या बदतमीजी है? इसके करीब पहुंचने पर परी दबी आवाज में घबराई। साथ ने इसके बात को इतना सीरियस नहीं लिया और शॉपिंग बैग जबरदस्ती इसके हाथ में थमा दिया। इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, आबदा बेगम और फायजा बेगम वहां पर आ पहुंची। जी, आना तो 1 घंटे के बाद ही था, लेकिन क्या है ना, कल किसी बेवकूफ़ चूहिया ने मेरे सारे कपड़े कुतर दिए थे, तो मैंने सोचा मैं भी शॉपिंग कर लूं, इसलिए जल्दी से आ गया। बात तो वो आबदा बेगम से कर रहा था, लेकिन देख वो परी को रहा था। अच्छा, वैसे घर में चूहे तो नहीं हैं, लेकिन खैर तुम शॉपिंग कर लो, हम भी थोड़ी देर में फारिग होने वाले हैं। ओके, ये कहकर साहब बाहर चला गया। परी खुद के लिए बेवकूफ़ सा चूहिया का लक़ब सुनकर तलमला सी गई। अगले दिन फजर और परी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठे पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि परी ने फजर के हाथ में एक नया फ़ोन देखकर कहा, फजर, तुम्हारा वो फ़ोन जो इस लड़के के पास था, उसने वापस किया कि नहीं किया? इस बदतमीज़ ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। खैर तुम ये छोड़ो, बताओ कि तुम्हारी कज़न से दोस्ती हो गई है या नहीं? दोस्ती माई फूड, इसका तो नाम भी सुनना नहीं चाहती। ना चाहते हुए साथ के जिक्र पर परी के लहजे में तलखी सी आ गई। खैर छोड़ो, लेक्चर का टाइम हो गया। ये कहते ही दोनों क्लास लेने चली गई। अगले दिन परी बहुत खुश थी, क्योंकि आज पार्टी थी जिसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। परी ने पार्टी के लिए पीच कलर की फ्रॉक, नीचे कैपरी पहनी थी और हम रंग दुपट्टा कंधे पर इसकी तरफ झूल रहा था। बालों को स्ट्रेट करके इसने खुला छोड़ा हुआ था, हल्का फुल्का सा मेकअप करके, और इसने मैचिंग चूड़ियां और मैचिंग ज्वेलरी भी पहन रखी थी। परी तैयार होकर लाउन में जाकर फजर का इंतजार करने लगी, क्योंकि इसने फजर को साथ जाना था। 5 मिनट इंतजार करने के बाद परी फजर को फ़ोन करने लगी। तभी घर में एक गाड़ी दाखिल हुई। चूंकि परी की इसकी तरफ पुश थी, इसलिए वो नहीं देख सकी कि कौन आया है। वो भी फजर से बात करके पलटी ही थी, जो कह रही थी वो 10 मिनट में पहुंच रही है। तो इसने साथ को बिल्कुल अपने पीछे खड़े पाया, जबकि इसे देखते एक नागवारी सी लहर इसके अंदर सरायत कर गई। परी ने 2 कदम पीछे हटकर इसे अपने साथ के दरमियान फासला बढ़ाया। मुंह मोड़कर खड़ी होगी, जबकि साथ इसके ऊपर से नीचे तक का जायजा ले रहा था। इस वक्त कहाँ जाने की तैयारी है मोहतरमा? परी को बगौर देखते हुए साथ ने पूछा। परी ने भी इस पर एक निगाह डाली साथ पर और कहा, मैं जहां मर्जी जाऊं, एटलीस्ट तुम्हें तो मैं जवाब बिल्कुल भी देना ज़रूरी नहीं समझती। ये कहकर परी आगे भरने लगी। साथ ने एक झटके से इसकी कलाई पकड़कर वापस खींचा। ये क्या बदतमीजी है? साथ की सरकत पर परी गुस्से से चीखी, जितना पूछो सिर्फ इतना ही जवाब दिया करो, मेरे सामने अपनी इस लंबी जुबान को कंट्रोल में रखा करो।
अब बता रहे हो कहाँ जा रही हो? मेरी मर्जी, में जहाँ मर्जी जाऊँ। परी भी बगैर डरे साद की आंखों में आंखें डालकर बोली, और परी के अंदर मौजूद साद भी इस ताल में आकर इसे धमकी दी, अगर तुमने घर से एक कदम भी निकाला तो परी तो अपने अंजाम की जिम्मेदार खुद होगी। ये समझता क्या है अपने आप को? ऐसे हुक्म चलाता है जैसे मैं इसकी गुलाम होती हूँ। मैं भी देखती हूँ ये कैसे रोकता है मुझे। अभी परी ये सोच ही रही थी कि चौकीदार ने इसे आके बताया कि फजर आ गई है। फजर ने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दी, ये सोचे बगैर कि इसका ये कदम आगे जाके कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। परी फजर की गाड़ी में जाकर बैठी तो फजर ने परी को देखते ही कहा, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। परी ने भी खुले दिल से फजर की तारीफ की, जिसने रॉयल ब्लू कलर की शॉर्ट फ्रॉक के नीचे कैपरी पहनी थी। हल्के मेकअप के साथ बालों को कर्ल करके दोनों कंधों पर डाला हुआ था। साथ ज्वेलरी भी पहनी हुई थी, जिसमें फजर नजर लग जाने की हद तक वो खूबसूरत लग रही थी। और परी भी फजर की बहुत ज्यादा उसने तारीफ की, और फजर ने परी की बहुत ज्यादा तारीफ की। पार्टी में पहुंचकर फजर की नजरें इधर उधर किसी की तलाश कर रही थी। बिलाखिर इसकी तलाश तब खत्म हुई जब इसके सामने आता हुआ अलियान नजर आया, जो ग्रे कलर के पेंट कोट में बालों को जेल की से सेट किए हुए, हाथों में कीमती घड़ी पहने किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रहा था। इसे देखते ही फजर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, क्योंकि आज वो अलियान से सारे हिसाब बेबाक करने का इरादा रखती थी। फजर अलियान को देखकर मुस्कुरा रही थी। परी इसे दोस्तों से मिलवाने के लिए चली गई। अभी फजर अपनी दोस्तों के साथ तस्वीरें खिंचवा ही रही थी कि इसके फ़ोन पर प्राइवेट नंबर से कॉल आने लगी, जिसे देखते ही परी समझ गई ये किसका फ़ोन है। गुस्से में भड़बड़ाने लगी, ये बदतमीज़ इंसान अपने आप को समझता क्या है। इसके साथ ही वो पार्टी से निकलकर यूनिवर्सिटी की बैग पर आ गई। फ़ोन उठा लिया, उठाते ही शुरू हो गई, तुम एक बात बताओ, तुमने क्या ढीठपन की पीएचडी की हुई है? एक दफ़ा कही हुई बात तुम्हें समझ नहीं आती? मैं तुम्हें कहा था कि आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना। फजर इंतहाई गुस्से में बोली, अब तुम इस तरह कांटों से लेस होकर करोगी तो तारीफ कैसे करोगी? ये कलर में तुम बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन ब्लू कलर में तो सच में क़यामत ढा रही हो। अब तुम इसे ढीठपन कहो कि मोहब्बत? मुझे दिलो जान से तुम्हारा दिया हुआ हर लक़ब मंजूर है। मुझे यकीन है कि तुम मुस्तकबिल में मेरे लिए भी इसी तरह तैयार हुआ करोगी। वहाँ जल्दी घर चली जाना, रात की पार्टी में ज़्यादा देर तक तुम्हारा यहाँ पे रहना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जबकि इसकी बात सुनकर फजर बहुत ज़्यादा हैरान रह गई कि इसे कैसे पता कि मैंने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं और यहाँ पर मैं तैयार होकर आई हुई हूँ। फजर इसकी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान सी हो गई। ये क्या शख्स मेरे बारे में इस कदर बाखबर है? हैरान होने के साथ इसे गुस्सा भी आ रहा था। तुम कौन हो? ये सब कैसे जानते हो? मेरी जान, तुम्हें ये जानने का इतना शौक क्यों है मैं कौन हूँ? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। आखिर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बंदे को शाह कहते हैं। जहाँ तक तुम्हारे बारे में जानने की बात है, तो अगर तुम्हें जानूंगा नहीं तो तुम्हारे साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। बकवास बंद करो अपनी, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। सारी सी बात है, शादी के बाद बीवी शौहर के साए में ही रहती है। तुमसे शादी नहीं करूंगी, इसलिए ये तुम्हें तुम्हारे बारे में जानने की ज़रूरत नहीं। मुझे तुम्हारे बारे का जानने का बिल्कुल भी शौक नहीं, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, क्योंकि शाह को जो चीज़ पसंद आ जाए वो उसे हासिल करके ही रहता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। से बुरा हो भी क्या सकता है? ये कहते ही फजर ने फ़ोन बंद कर दिया, कि नंबर ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आज पहली दफ़ा सही मायनों में इसे शख्स से खौफ महसूस हो रहा था, वरना इसे हमेशा ये सब मजाक लगा। आज पहली दफ़ा इसे अंदर आता हुआ ये सब मजाक नहीं है। लेकिन फिर वो सर झटक कर बाल में जाने लगी जहाँ पार्टी थी। इसे रास्ते में अलियान किसी से बात करता हुआ नजर आया तो फजर दीवार के साथ छुप गई। इस शख्स के जाने के बाद अलियान कुछ देर खड़ा रहा, कुछ सोचता रहा। फिर जैसे ही जाने के लिए पलटा तो फजर ने इसे अपने पर्स में मौजूद इंजेक्शन लगा दिया। वो बेहोश हो गया। चूँकि अलियान इसकी तरफ पुश थी, वो देख नहीं सका ये कौन है। फजर भी यही चाहती थी, क्योंकि फजर जो हरकत करने वाली थी, अगर अलियान को इस बात का पता चल जाता तो फजर की कंप्लेन कर देता। फजर को यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता था। अलियान तो बामुश्किल थोड़ा सा घसीट कर फजर ने दीवार के साथ लगाया, इसको रस्सियों से बांध कर, जिसका इंतज़ाम इसने पहले से ही कर रखा था। मेरा फ़ोन वापस करो, फजर हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली। हाँ, ऐसे नहीं, पहले हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो, मैंने तुम्हें कल सॉरी बोला था। अब मेरा फ़ोन वापस करो, फजर बहुत ज़ब्त से बोली। मुझे तो ऐसे कुछ भी याद नहीं, मुझे तो बस ये याद है कि कल आपने मुझसे बहुत सारी बातें सुनाई थी, चोर भी कहा था। अब जब तक आप मुझे सॉरी नहीं बोल देती, आपका फ़ोन तो आपको मिलने से रहा। देखो अलियान, चुपचाप मेरा फ़ोन वापस करो, वरना मैं एडमिन ऑफिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। अच्छा, क्या कहोगी? क्या किया है मैंने?